Yes, in the last lecture we have learned the controls. Okay, ASP.NET server controls. Okay, what is the meaning of controls? Controls matlab kya? Uh, tool tools, okay, which are available in .NET framework. Okay, using controls we can do the designing in the ASP.NET. Okay, in the Microsoft Visual Studio, we can design through the available controls, ASP.NET server controls. Okay, for example, in one of the lecture we have done the registration page. Okay, then we have already done the addition of two numbers programs. Okay, in which we have taken two text box, two label, one button. Okay, and one more text box for the answer. Okay, that program we have already done in the practical session Monday. Okay, yes, now this is a web application. Okay, what we are going to add new web form. So how to add new web form? This is a by default web page is given to you. This is ready made for you. Okay, so if you want to use this, you can use this. Otherwise, you can add new one. Okay, so how to add? Just click web application 3, right click, select karo, right click, then add new item, go to the new item. Okay, select the web form, select the Visual C# language. Okay, web form. Okay, if you want to give the name, you can give change the name from here. Okay, and add. So what will be happen? Then a web form is added. Okay, wait. So this is a your web form 1. Okay, as I told you in the previous lecture, we can do the designing in two ways. The first from here, okay, through the source language. Okay, using the source language, you can do the designing. Okay, here you have to write the tag names. Okay, text ka name you have to write here. If you want to create label, so here you have to write the label. Okay, how to write I will tell you. And another way is go to the design surface, go to the design surface. Okay, this is your design surface, and go to the toolbox. This is your toolbox. You can take the controls from toolbox directly, so no need to write the code for the designing. If you want to do directly from toolbox, you can do from here. Okay, this is a toolbox. In the toolbox, so many controls are available here. Okay, ASP.NET controls, server controls are available here. You can take any controls according to your requirements. Wait. Okay, so these all are the controls. ये सारे क्या है controls? Pointer, add rotator, bulleted leaves, button, calendar, checkbox leaves, drop down leaves, file upload, all are the controls. क्या है ये सारे controls? The controls are used to design your web page. Okay, your web page design करने के लिए आपको you need the controls, and you can take these controls from the toolbox also. ठीक है, आप toolbox में से भी ले सकते हो. Otherwise, if you want to use HTML controls, अगर आपको HTML के बेसिक कंट्रोल्स यूज करना है, तो यू कैन राइट द कोड हियर. ओके, HTML का भी कंट्रोल्स का कोड यू कैन राइट हियर, एंड ASP.NET सर्वर के जो कंट्रोल्स है यू कैन आल्सो राइट हियर. ओके, सो there are three types of control. HTML server controls मतलब ट्रेडिशनल HTML टैग्स. ओके, ट्रेडिशनल HTML टैग्स जो हमने HTML में पढ़ा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट वी हैव रिटर्न. ठीक है, देन बटन के लिए रेडियो बटन, that controls if you want to use, so you can use. Okay, in the HTML.NET, the ASP.NET provide a way to work with HTML server controls on the server side. Programming with this set of controls collectively called HTML controls. Okay, these controls are grouped together in the Visual Studio toolbox in the HTML control tab. The markup of the controls are similar to HTML controls. These controls are basically the original HTML controls but enhanced to enable server-side processing. So you have to add, क्या आपको ऐड करना है लास्ट में, रन एट सर्वर. ओके, रन एट सर्वर. इफ यू वांट टू ऐड, आपको HTML का कंट्रोल ऐड करना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट साइज इक्वल्स टू 40, बट आगे यू हैव टू राइट रन एट सर्वर. ओके, आप HTML में हाउ टू क्रिएट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हो, दिस इज इनपुट टेक्स्ट है. ओके, टाइप टेक्स्ट लिखते हो,
and you assigning the size 40. अगर आपको same controls in the HTML में लिखना है तो आपको one more attribute you have to add, that run at server. Okay, so HTML के controls you can use all these are the HTML controls. HTML head, input button, check button, input file, hidden, image, password, radio button, reset. Okay, text, image, link, anchor tag, button tags. Okay, form tag, table cell, table row, title, select. All these HTML controls you can use in the ASP.NET. Okay, मतलब Visual Studio में you can use all these controls. The second type of control is web server controls. Second is web server control. The web server controls are the special ASP.NET text understood by the server. Special ASP.NET text. Like HTML server controls, web server controls are also created on the server and they require the which attribute run at equal to server. Okay. However, web server controls do not necessarily map to any existing HTML elements and they may represent more complex elements. Okay. Okay. All web server control inherit from the common base class. कौन से class में से we can inherit that web control class और वो कौन से namespace में है system.web.ui.web controls already है, you know, हमको उसको सोर्स कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हेडर फाइल वहाँ पे हो गए. ओके, हाउ टू क्रिएट द वेब कंट्रोल्स. ओके, हाउ टू क्रिएट द वेब सर्वर कंट्रोल, कैसे क्रिएट करना है. ASP सिंटैक्स, ASP कंट्रोल नेम आईडी, ओके, कोई भी आईडी दे दो एंड रन एट सर्वर, तो यू कैन क्रिएट द ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स. ऑल आर द सर्वर कंट्रोल्स जो मैंने आपको दिखाया ना, दिस ऑल आर द सर्वर कंट्रोल्स, ये सारे सर्वर कंट्रोल्स हैं, ठीक है. बटन, कैलेंडर, ऑल ये जो है ना, ये सारे ऑल आर द सर्वर कंट्रोल्स, ठीक है, सारे सर्वर कंट्रोल्स हैं. ओके, दिस इज HTML कंट्रोल्स, जो हमने फर्स्ट टाइप मैंने दिखा HTML सर्वर कंट्रोल्स, ऑल आर द HTML सर्वर कंट्रोल्स. तो यू कैन यूज दिस कंट्रोल आल्सो, अदरवाइज .NET के जो कंट्रोल्स है यू कैन यूज दिस कंट्रोल्स आल्सो. अंडरस्टैंड सर्वर कंट्रोल्स. HTML जो कंट्रोल्स है, ठीक है, जो HTML में हमने टेक्स्ट थ्रू जो कंट्रोल्स क्रिएट किया वो कंट्रोल्स में यहाँ पे अवेलेबल है, तो यू कैन यूज दिस कंट्रोल आल्सो. अदरवाइज ASP.NET सर्वर के खुद के कंट्रोल्स है, यू कैन यूज दिस कंट्रोल्स आल्सो. डेटा, दिस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस के लिए, ये कंट्रोल्स वी विल लर्न लेटर. ओके, and third type is validation controls. These are the validation controls. Okay, how to take validation controls we will learn, okay, in detail. But validation control में see compare validator. Okay, if you want to check password, new password and old password आपको check करवाना आता है ना कभी कभी, enter your password नहीं re-enter your password, तो आप re-enter करते हो, अगर if re-enter password is wrong तो message display होता है. तो if you want to check this type of comparison आपको check करवाना है तो you can use compare validator. कस्टम वैलिडेटर मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई, खुद का आपको कोई रिक्वायरमेंट डालना है, ओके, कि नहीं ऐसे इनपुट डालो या इनपुट यही होना चाहिए, तो यू कैन यूज क्रिएट द कस्टम वैलिडेशन. रेंज वैलिडेटर, 10 मोबाइल नंबर 10 है 0 to 10, ओके, तो 10 0 to 10 या तो कोई भी जो भी रेंज इफ यू वांट टू सेट, तो यू कैन यूज सेट यूजिंग द रेंज वैलिडेटर कंट्रोल्स. रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ईमेल आईडी @.com ही होना चाहिए, या तो कोई भी और एक्सप्रेशन, पोस्टल कोड वगैरह, ठीक है. तो इफ यू वांट टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन तो यू कैन यूज दिस कंट्रोल. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मतलब क्या, द टेक्स्ट बॉक्स मस्ट नॉट बी empty, या तो यू मस्ट एंटर समथिंग, मस्ट एंटर योर यूजर नेम, ठीक है. whenever you do साइन अप करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो कोई भी वेबसाइट्स में, अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ते हो तो मैसेज डिस्प्ले होता है. तो व्हाई वी कैन डू दिस इन ASP.NET यूजिंग दिस कंट्रोल, व्हिच कंट्रोल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, which control required field validator. So these are the third type of controls, validation controls. Okay, बहुत सारे navigation controls भी है, web parts भी है, ठीक है, but mainly they are divided into 3 types में divide किया. एक तो standard controls, okay, the second is validation controls and the third one is HTML controls. HTML मतलब जब basic HTML में use करते थे ना, horizontal tab, table, image, select वगैरह, तो ये controls भी you can use in the Microsoft Visual Studio in ASP.NET. and you दोनों controls you can design, you can do the designing using these controls in 2 ways. एक तो source code में जाके directly लिखो, otherwise design में जाके toolbox से take any control you want. Now clear students, yes or no? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Controls, what is the meaning of controls? Yes, controls means क्या?
tools, okay, through which we can design our web page. ठीक है, हम लोग हमारा वेब पेज, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे दिस टूल बॉक्स से. ओके, तो ये क्लियर हो गया हाउ टू डिजाइन. एक तो सोर्स कोड से लो, अदरवाइज सोर्स कोड में राइट रिटर्न दी कंट्रोल कोड, अदरवाइज डिजाइन में जाके डायरेक्टली ले सकते हो. ओके, एंड द कोडिंग पेज विल बी डिफरेंट. कोडिंग पेज डिफरेंट है, ठीक है. सोर्स कोड में जाओगे, उसका एक्सटेंशन .aspx मतलब डिजाइन ही यू कैन डू थ्रू दिस सोर्स कोड. ओके, एंड डिजाइन से भी एक्सटेंशन क्या है .aspx, यू कैन डू द डिजाइनिंग. एंड कोडिंग पेज इज डिफरेंट. ओके, कोडिंग पेज इज डिफरेंट, कोडिंग अलग पेज है. See, this is a coding page. उसका extension.cs, aspx.cs. तो confuse नहीं होता. This is your coding section. ठीक है, coding file. .cs is a coding file. So you can write your code here according to your requirement. Okay. ठीक है, चलो. Now controls. ठीक है, ये हम सारे controls we will learn. Label already we have learned. Okay, मैंने आपको label दिखाया, text box दिखाया, button we have already learned. ठीक है, ये basic label, text box, button we have already learned. हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज वगैरह वो भी हमने देखा. वैलिडेशन कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाया, हम लोग उसको प्रैक्टिकली करेंगे. ठीक है. यस, नाउ the next topic is first we will learn the list box control. Okay, today we will learn the list box control. Which control? List box control. Okay, list box control. Now we will learn the controls in detail. Okay, जितने भी कंट्रोल सिलेबस में है, we will learn all these controls. So standard tool box में you will find the list box control. कौन सा कंट्रोल मिलेगा आपको? List box. See, this is a list box control. Okay, list box control. बहुत सारे controls हैं. Already we have done with the button, label and text box हम लोगों ने कवर किया है. ठीक है. Now today we will learn the list box. This is list box control. Okay, what is list box control, what is the use of that control, which are the properties, which are the methods, पूरा हम लोग theory देखते हैं, then we will do the practical in this Microsoft Visual Studio. Okay, ASP.NET list box control. List box control is an ASP.NET web server controls. Okay, it is a web server controls ASP.NET. Why? Because Microsoft Visual Studio provides this controls. List box control used to store the multiple items and allow user to select multiple items from the list box control. Okay, what is the use of list box control? We can store multiple items in the list box control and allow user to select multiple items from the list box control. List box control is same as drop down list. You know what is a drop down list, आपको पता है. ठीक है. सिलेक्ट सिटी, तो हम लोग नीचे डिस्प्ले कुछ हर एक सिटी का नेम गिवन are given there and we can choose one of this city. Okay, तो list box control is similar to drop down list control, but what is the difference क्या है? The drop down list control allow user to select maximum only one item at a time, and on the other hand list box control allow to user to select multiple items same time. So we can also say list box is a multi-row selection box control. Okay, so हम लोग list box को we can say multi-row selection box control. Clear? This is basic information about the list box control. Okay, what is the difference between list box control and drop-down control? You should know. Okay, I will ask in the MCQ में ये सारे questions जो PPTs जो concepts जो मैं आपको करवा रही हूँ questions उसमें से ही होगा. And we can also say list box is a multi-row selection box control. Which control? Multi-row selection box control. Please note down, students. Okay, note down. मेरे लेक्चर में नोटबुक एंड पेन लेके बैठो. ओके, नोट डाउन ऑल दी जो मैं बोल रही हूँ. प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स. यस, some important property. What is the use? Okay, use you know now. Now the important properties of list box control. Which are the properties we can set from the properties window? Okay, properties window say we can set all these properties. The first property is item property. Using item property, you can add the items in this control. It is indicate the collection of items in the list box. Okay, there are main two things to consider while adding new item in list box control. Just read the theory. I will show you with the practical. Each item of the list box control contain text and value attributes. At the time of adding new item in the list box, we need to give two things, text and value for each item. The text property specify the text display in the list box, and value property is invisible value, but we can get the value while programming. Each item has text and value within it. चलो पहले हम लोग देखते हैं how. Okay, now we are taking
लिस्ट बॉक्स, पहले हम लोग एक लेबल ले लेते, ठीक है। सो यू कैन, आपको व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल वो भी याद आ जाएगा। वी ऑलरेडी डन लेबल, नहीं आया, ओके। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग द वन लेबल, ठीक है, मैंने एक लेबल लिया है। व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल, लेबल का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंट्रोल, ये कंट्रोल का यूज क्या है? लेबल कंट्रोल का क्या यूज है? फास्ट चलो स्टूडेंट्स। व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल कंट्रोल, लेबल कंट्रोल का क्या यूज था, हम लोगों ने किया ना मंडे। यस, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज यूज ऑफ लेबल कंट्रोल्स, ये कंट्रोल से हम लोग क्या कर सकते हैं? Using this control we can show the text to the users, okay, अगर यूजर को कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो you can set this text using the label control, okay। तो how to set the text, for example मैंने एक लेबल लिया, how to take label, डबल क्लिक किया, the label यहाँ पे आ गया। now select the label, this is the id of label is label 1, मैंने यहाँ से लेबल लिया तो you can see in the source में आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया ASP लेबल id रन एट सर्वर, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, तो साइमल्टेनियसली हो जाता है। ओके, नाउ आई वांट टू सेट, यहाँ पे सम टेक्स्ट मुझे सेट करना है, ओके तो मैंने क्या किया, आई एम सिलेक्टिंग द लेबल, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो एंड व्हिच प्रॉपर्टी, लेबल प्रॉपर्टीज आई विल चेंज, व्हिच प्रॉपर्टी आई विल चेंज, लेबल। तो इन लेबल प्रॉपर्टी, in the text property, sorry, in the text property of the label I will write this is example of list box control, okay, this is example of list box control, okay। आ गया, yes or no, visible है, visible है, yes or no, Yes, ma'am. ओके ओके। तो ये क्या किया मैंने, लेबल लिया, लेबल इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट टू द यूजर, यूजर को टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए यू कैन यूज द लेबल, आप लेबल यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू चेंज फॉर्मेटिंग ऑफ द लेबल, ठीक है, मैंने उसमें टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले किया, लेबल को सिलेक्ट किया एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट किया। नाउ आई वांट टू चेंज द उसका फॉर कलर, आई हैव ऑलरेडी, ये मैंने आपको दिखाया है, याद नहीं है तो न्यू है तो मैं अगेन आपको एक बार बताती हूँ, ओके। तो मैंने उसका कलर भी चेंज कर दिया। Every time you have to select the label, go to the properties window, you can set any properties, okay, this is property, ये property window है, कहाँ पे मिलेगा property window आपको, सी यहाँ पे, okay। तो कैसे करना है, select करो, properties window में जाओ, okay, border color, first of all we give the border, okay, border style हम लोग दे देते हैं, तो solid, ठीक है, this is border side। if you want to उसका आपको size इंक्रीज करना है, okay, size change कर देती हूँ, okay, this is example of list box control। now I am taking the list box, आज हमको कौन सा पढ़ना है, list box control, तो I am taking the list box control, see this is a list box control, जैसे कर्सर लेके जाओगे ना तो you will get the name of that control, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है list box control, क्या हो रहा है, list box control, तो डबल क्लिक करो, okay, आ गया, this is list box, okay। now which property we have learned, first property हमने क्या देखा, important property में item property, okay। तो item property used to add items in the list box, if you want to add item, अगर आपको list box में item add करना है तो कोडिंग करने की जरूरत नहीं, you can also do with the कोडिंग से भी कर सकते हो, but directly property we have the property। तो क्या करना है, again select the list box, go to the properties window and कौन सा प्रॉपर्टी उन्होंने बोला था, कौन सा प्रॉपर्टी बोला था हम लोगों ने, which प्रॉपर्टी, पढ़ो यहाँ पे, याद रखो, आइटम, ओके, विच प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी, तो सिलेक्ट करो, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो एंड आइटम प्रॉपर्टीज, सी दिस इज द आइटम प्रॉपर्टी, ओके। आपको उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा प्रॉपर्टीज विंडो में, आइटम प्रॉपर्टी, ओके, आइटम प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन दिस आइकॉन, ये जो थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल शो दिस आइटम लिस्ट आइटम कलेक्शन एडिटर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। नाउ ऐड, ओके, तो हमने प्रॉपर वहाँ पे थियरी में पढ़ा कि व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइटम प्रॉपर्टी तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक टेक्स्ट मिलेगा एंड वैल्यू मिलेगा, ओके। तो यू हैव टू सेट
these two एट्रीब्यूट्स आपको सेट करना है फॉर द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए। आइटम, आइटम मतलब क्या, यूजर को आपको क्या डिस्प्ले करवाना है लिस्ट बॉक्स में। फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ पेन, ओके, एंड वैल्यू पेन, ठीक है। आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज। नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन। अनदर आई एम एडिंग द आइटम पेंसिल, ओके ओके। अगेन ऐड, जितना आइटम्स आपको ऐड करना है यू कैन ऐड। कलर, okay, color, okay, one more I'm adding the item pen, pencil, color, books, items। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, यू कैन ऐड आइटम्स प्रॉपर्ली आपको जैसे करना है। ओके नाउ, ओके बस बहुत हो गया, 3 आइटम्स, ओके ओके ओके। नाउ ये लिस्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। वी हैव एडेड द आइटम इन द लिस्ट बॉक्स। इफ यू वांट टू चेंज उसका प्रॉपर्टी चेंज करना है तो आप दूसरा कोई प्रॉपर्टीज है, फोर कलर, फॉन्ट कलर, यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है। ये स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगी स्टूडेंट, बिकॉज आपको ये नहीं मतलब न्यू है। एक बार यूज टू हो जाओगे तो डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन दी कंट्रोल्स। मैं उसका बेसिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। ऑल आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज, ये जो कलर्स, फॉन्ट वगैरह है ना, ऑल आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सारे कंट्रोल्स में अवेलेबल है। ओके, ये आइटम्स ये हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लर्न, ओके। क्या बोला है फर्स्ट प्रॉपर्टी आइटम में, वी हैव टू सेट टू प्रॉपर्टी टेक्स्ट एंड वैल्यू। टेक्स्ट यूजर को डिस्प्ले होगा एंड वैल्यू विल बी यूज इन द प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम लोग यूज करेंगे वैल्यू। हाउ टू यूज बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। Yes. The next property is listbox1 dot items dot count, which is the next property, listbox1 dot items dot count, okay। This you can say methods, अब ये है, okay, आप इसको methods बोलो, और the properties ये methods है, okay। This is the methods, ये methods है, because we will write these methods in the कोडिंग में हम लोग लिखेंगे सारा, ठीक है। ऑल आर द मेथड्स। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ओके। प्रॉपर्टीज आर यूज फॉर डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड मेथड्स वी विल यूज इन द कोडिंग में हम लोग यूज करेंगे, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है, listbox1 dot items dot count, okay, returns the total count of item in the list box। रिटर्न दी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दी लिस्ट बॉक्स में क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो रिटर्न करेगा। The second property, second method is listbox1 dot items dot add item name, okay। तो आपको आइटम नेम ऐड करना है एट द रन टाइम, तो आप कोडिंग में ये चीज यू कैन राइट, ओके। हम लोग ये सारा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इंसर्ट, द नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट मेथड। तो ऐड न्यू आइटम एट स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट बॉक्स, ओके। इंटीजर इंडेक्स दे दो, कौन सी इंडेक्स का आपको ऐड करना है, 0 नंबर 1 2 3, एंड आइटम नेम, कौन सा आइटम ऐड करना है, आइटम विल बी एडेड एट द पर्टिकुलर पोजीशन। यहाँ पे ऐड करोगे तो आइटम जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। इफ यू वांट टू इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड। listbox1 dot items dot remove item name, जो भी आइटम नेम आप सिलेक्ट लिखा होगा द आइटम विल बी रिमूव। listbox1 dot items dot remove at पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको रिमूव करना है तो यू कैन यूज this method, okay। all are the methods, count method, add method, insert, remove add। then clear, okay, clear is a method, clear all the items from the list box control। then selected item dot text returns the text value of the item of list box। जो हमने सिलेक्ट किया होगा ना वो सिलेक्टेड आइटम का क्या डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। वैल्यू, जो आइटम सिलेक्ट किया होगा उसका वैल्यू विल बी डिस्प्ले। एंड इंडेक्स, दिस विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द आइटम्स। नाउ हम ये मेथड्स हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो यू विल understand, okay। return the total count of item in the list box, which method, listbox1 dot items1 dot count। ये जो मेथड है क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स में जितना भी आइटम्स है वो काउंट करके डिस्प्ले करेगा, ओके। नाउ हाउ कैन वी डिजाइन, हम ये डिजाइन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बटन ले लेते हैं, ओके। वी आर टेकिंग वन बटन, बटन ले लिया, ओके। इन बटन टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर काउंट, ओके। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, काउंट, COUNT, ओके। काउंट करके एक बटन मैंने बटन लिया है, आई एम टेकिंग वन बटन काउंट, ओके। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस काउंट बटन ना, मैं काउंट बटन ले रही हूँ तो यहाँ पे एक लेबल ले रही हूँ, तो वो लेबल में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, दैट विल बी डिस्प्ले इन दिस वन लेबल, ठीक है। एक लेबल ले रही हूँ, लेबल इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट टू द यूजर। द आईडी ऑफ लेबल क्या है, 2, लेबल का आईडी क्या है 2।
तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, जब मैं काउंट बटन पे क्लिक करूंगी तो लेबल में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, जितने ये आइटम्स है ना वो आइटम्स काउंट होके आना चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 शुड बी कम इन दिस लेबल एज अ आउटपुट व्हेन आई विल क्लिक ऑन काउंट बटन। जब मैं काउंट बटन पे क्लिक करूंगी तो देन हाउ टू काउंट दिस आइटम्स, आइटम कैसे काउंट करना है, क्या मेथड है, वी हैव द मेथड listbox1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट। ओके, listbox1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, क्लियर। तो हम लोग इसको लिखते हैं where we have to write in the count double click event, buttons double click event, sorry buttons click event में we have to write, क्योंकि हमको बटन पे क्लिक करने से लेबल में आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। ओके ओके, नाउ बटन जो है बटन के डबल क्लिक में वी विल राइट द कोडिंग। व्हाट कोडिंग हम लोग राइट करेंगे कि लेबल 2 में, ओके जो लेबल 2 है, वाई लेबल 2, बिकॉज लेबल 2 हमने आंसरिंग के लिए है, लेबल 1 जो है वो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले किया है कि दिस इज एग्जांपल ऐसे करके। लेबल 2 dot text, always text property you have to use, okay, label 2 dot text equals to label 2 dot text, okay, text text इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो लेबल 2 में डिस्प्ले होना चाहिए, व्हाट डिस्प्ले होना चाहिए, कि जो लिस्ट बॉक्स हमने लिया है, ठीक है, वेट विच लिस्ट बॉक्स, कौन सा लिस्ट बॉक्स, आईडी यू हैव टू राइट, तो यहाँ पे देखो यू कैन सी देयर आईडी लिस्ट बॉक्स 1, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट व्हाट इज द मेथड, क्या मेथड है, आइटम्स listbox1 डॉट आइटम्स, सी आ गया, ओके आइटम्स डॉट काउंट, आइटम्स डॉट काउंट आ गया, काउंट इज अ मेथड सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, ओके। तो ओके listbox1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट डॉट हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग वाई, एक मिनट, व्हाट इज द सिंटैक्स क्या है, listbox1 dot items dot count, okay, yes yes, listbox1 dot items dot count dot to string, ठीक है, हम लोग टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको लेबल में डिस्प्ले करवाएंगे। नाउ वी विल रन दिस वेब पेज, ठीक है, देखते आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यस अबू बकर, मैंने आपको मेल नहीं किया है ना, मैं भूल जाती हूँ, मुझे लेक्चर मेल करती हूँ सेटअप में आपको, ठीक है। वेट, क्या हो गया इसको, अगेन आई एम रनिंग, वो ना टाइम ले रहा है रन होने में, वेट, इंस्टॉल किया सब लोगों ने घर पे, इंस्टॉल किया। मैम सेटअप लिंक नहीं मैम नहीं मिला मैम हम लोग को। तो मैंने आपको लेक्चर में कितनी बार बोला कि मुझे मेल करो, मैं दूंगी, मुझे जिसने मेल किया, मुझे शोएब पटेल ने मेल किया, ईमेल आईडी दिया, नशरा ने दिया, कीर्ति ने दिया, उन लोगों को मैंने सेंड किया, अबू बकर को देना बाकी है, ओके, तो यू कैन टेक फ्रॉम देम, आप उनसे भी ले सकते हो, अदरवाइज मुझे करोगे तो मैं भी दे दूंगी, बट मैं भूल जाती हूँ, मुझे अभी आज अबू बकर को देना है। आप शोएब से वगैरह सब, शोएब है, कीर्ति है,
नशरा है, सबको मैंने मेल किया, तो आप उन लोगों से भी मेल ले सकते हो, ठीक है, या तो आपका कोई कॉमन आईडी वगैरह है। हाँ मैं स्वैप किया था तो एक्सेस डिनाई लिखा रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सेस ही नहीं हो रहा है। ओके मैम ठीक है। मैं आपको सेंड कर दिया मैम। हाँ हाँ मैं देती हूँ अबू बकर, आपको अभी करती हूँ, ये लेक्चर के बाद करती हूँ, ठीक है। मैम 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 मेरा भी कर दो। हाँ हाँ मैं साथ में ही कर देती हूँ, अभी और किसी का है तो मुझे मेल कर दो एक साथ में, तो मैं ये इसके बाद डीबीएमएस का लेक्चर उसके बाद मैं सबको कर दूंगी, ठीक है। तो चाहिए किसी को तो मुझे मेल कर दो, एक साथ एक ही मेल में सबको दे दूंगी मैं। यस लोकल होस्ट वेबफॉर्म 1.aspx ही रन हो रहा है। ओके सी दिस इज एग्जांपल ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। ये हमने लेबल लिया था तो लेबल में डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा आइटम्स है, लिस्ट बॉक्स हमने आइटम्स ऐड किया था, ठीक है। ओके यू कैन सिलेक्ट द आइटम्स, ठीक है, आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। बट अभी हमने क्या कोडिंग किया, व्हेन वी क्लिक ऑन द काउंट बटन, तो काउंट बटन में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स, जितना हमने जो लिस्ट बॉक्स में जो आइटम्स है दैट विल बी डिस्प्ले इन लेबल, तो लेबल में डिस्प्ले हो रहा है काउंट किया तो। ओके सी अगेन उसको रिफ्रेश करती हूँ, तो इन द काउंट बटन वी हैव रिटन द कोड कि लेबल, ये हमने लेबल लिया था, व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है, लेबल है, ठीक है। लेबल में 4 आइटम डिस्प्ले हो रहा है, व्हाई, बिकॉज 4 आइटम हमने ऐड किया है। तो व्हेन वी क्लिक ऑन द काउंट बटन तो 4 विल बी डिस्प्ले, व्हाई, बिकॉज हमने कोडिंग में क्या लिखा है कि लेबल 1, कोडिंग में क्या लिखा है हम लोगों ने, लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स काउंट। तो अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो यू कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट यूजिंग द इन्वर्टेड कॉट, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। टोटल आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स आर, तो इन्वर्टेड कॉट कंप्लीट करो प्लस, ओके तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो उसको अगेन मैं रन करूँ सेम पेज, ओके वेबफॉर्म 1, ओके नाउ काउंट पे क्लिक करेंगे तो टोटल आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स आर 4, क्लियर, समझ में आया। व्हेन वी क्लिक ऑन द काउंट बटन तो ये डिस्प्ले होगा, टोटल आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स आर 4, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है क्या कोडिंग किया, कहाँ पे कोडिंग किया, कैसे हम लोगों ने लिखा, यस और नो। ओके दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी आइटम्स डॉट काउंट, जिससे रिटर्न हो रहा है टोटल काउंट ऑफ आइटम्स, वो हमने कहाँ पे लिखा, बटन की डबल क्लिक, बटन की क्लिक इवेंट में। ओके बटन की क्लिक इवेंट में हम लोगों ने लिखा कि लेबल टू डॉट टेक्स्ट, ये एज इट इज टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, प्लस लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट क्या है, आपका मेथड है, किसका मेथड है, लिस्ट बॉक्स का मेथड है, तो यू कैन do like that. Okay now second, what is the second method, क्या है, listbox 1 dot items dot add item name, जो भी हम लोग item name लिखेंगे ना वो item कहाँ पे ऐड हो जाएगा, listbox control में। तो we can also write this method, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे दिया है वैसे ही, listbox 1 dot items dot add item name। ओके तो ऐड के लिए हम लोग वन मोर एक बटन ले लेंगे, ठीक है। व्हेन यूजर क्लिक ऑन ऐड बटन पे क्लिक यूजर करेगा तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो आई एम सिलेक्टिंग द ऐड बटन, ठीक है। देन गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेंज करो, यहाँ पे यू कैन राइट ऐड, ओके तो ऐड आ गया बटन। नाउ इन दिस बटन क्लिक इवेंट आई विल राइट द कोड, ये बटन की क्लिक इवेंट में मैं कोड लिखूंगी, क्या कोड लिखूंगी कि आइटम्स ऐड हो जाना चाहिए। तो हाउ टू ऐड आइटम, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ओके डॉट ऐड एंड वन मोर आइटम आई एम क्या लिखूं यहाँ पे ASP.NET, चलो ASP.NET,
ये आइटम आई एम ओके। तो क्या होगा, जब मैं सेकंड बटन पे क्लिक करूंगा बटन 2 पे, तो उसका आइटम क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। ओके, जब व्हेन आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन, तो यहाँ पे वन मोर आइटम ऐड होना चाहिए, ASP.NET। ओके, सीएम ध्यान से देखो, इसके बाद मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको मुझे देना है। क्या किया मैंने, ऐड बटन की डबल क्लिक पे, ऐड बटन की क्लिक पे आई एम राइटिंग हियर listbox1.items.add, क्या आइटम ऐड होना चाहिए, ASP.NET ऐड होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं, प्लीज रिजॉइन करो स्टूडेंट्स। ओके, रिजॉइन, सब रिजॉइन करो, ये मुझे कंप्लीट करना है लिस्ट बॉक्स। स्टार्टिंग में समझ में आ गया ना तो आप कोई भी कोडिंग कर सकते हो, बट द स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग कहाँ पे करना है, क्या कोड करना है, प्रॉपर्टीज क्या करना है, कैसे सेट करना है, एक बार वो दिमाग में बैठ गया ना तो यू कैन डू एनी प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, रिजॉइन करो। ओके, चलो ऐड बटन पे क्लिक करूंगी, सी ASP.NET आ गया। नाउ टोटल आइटम्स कितना है, 5 हो गया। क्लियर, यस और नो? ओके, ये तो जब मैं जितनी बार भी ऐड करूंगी तो ASP.NET ही ऐड हो रहा है। ठीक है, काउंट 6। बट नाउ व्हाट आई वांट टू डू, अभी मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लूंगी, यूजर को बोलूंगी प्लीज एंटर दी आइटम्स, जो आइटम्स यूजर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा, ऐड करने से वो आइटम यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ये हर एक बार ASP.NET हो रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल ऐड द आइटम डायनेमिकली, रन टाइम वी विल ऐड। ठीक है, नाउ 6 देखो 7 आ रहा है। तो रिजॉइन करो, रिजॉइन के बाद मुझे बताओ कि कैसे हम लोग करेंगे। अभी क्या हो रहा है, एवरी टाइम जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगी तो ASP.NET आइटम ही ऐड हो रहा है। व्हाई, बिकॉज हमने कोडिंग में क्या लिखा है, ASP.NET आइटम ऐड करो, ऐसा हमने लिखा है।